हम ध्यान साधना में, समाधि में गति करते चले जाते हैं। और यहाँ पर यह भी है कि अगर हमारे गुरु का शरीर छूट जाता है और हमारा भी छूट जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो उस कंडीशन में ये चीजें ऐसे काम करती हैं कि आप स्पेस में होते हैं और गुरु का जितना भी ज्ञान है वो आपके चारों तरफ मूव करता रहता है, घूमता रहता है एक सर्कल में, और आप उससे हमेशा कनेक्ट रहते हैं। तो जब आप नेक्स्ट जन्म लेते हैं तो वो सारी चीजें आपको याद रहती हैं, और वो सारी चीजें आपको एक तरीके से फोर्स करती हैं और धक्का देती हैं, और आप साधना में बहुत तेजी से गति करते हो। और उस समय प्रेजेंट में अर्थ पे जो भी गुरु होता है वो आपको कांटेक्ट करता है, ना कि आप कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप इतनी बड़ी ऊर्जा से कनेक्ट हो रखे हो। तो वो गुरु जो है, जो समय। Namaste, my name is Harsha and I live in London. I would like to share some information about Guru Darshan Sadhana, which is starting from 10th February. The last date for registration is 1st February. This is 11 days of meditation group, and the meditation time will be at 9 p.m. Indian Standard Time. If you're interested, and as this is paid group, you can contact Amin Akash on the number given below and can inquire about the fees. Now I want to talk to you about Guru Darshan Sadhana and the importance of this meditation for a true seeker. Why is it so important to have a living Guru in our life? For example, if a person without a Guru starts making a mistake in their meditation unknowingly and cannot progress any further, then they start looking for a Guru. Or when a student has a Guru, sometimes shows some carefree attitude and mindset, which is also another mistake. When a student is fully devoted to their living Guru, they are connected to their Guru's soul 24/7. And the student does not have to do anything special because they are in their Guru's energy field. An important question also arises: if both the student and the Guru leave their body, then what happens to the student and the level he has acquired until now? Or when a Guru leaves the body and the student, to further his meditation, goes to another Guru and starts meditation with a different method, as the new Guru won't use the same method. Hence the importance to be connected with our Guru's energy, and even if the Guru or student leaves the physical body, the meditation will still continue. When the student takes another birth, the connection with our Guru from the previous life forces the student to start meditation practice. And after a while, the Guru in the present form contacts the student as they are already connected in the energy form. Here, we will learn how we can be connected to our Guru without any mobile phone or an internet connection. Hence, why this group is so important for a true seeker. And this group is also very mysterious in its own way. This is a very small group of 11 students, so only those students should join who truly love their master and is passionate. Now my beloved master will explain further and give us more details about this meditation. Bye for now. Namaste. प्रणाम आप सभी को, और प्रणाम आपको हर्षा। आपने बहुत अच्छा बताया है, और यहाँ मैं जो है इन्हीं बातों को जो हिंदी में बता रहा हूँ। तो ये गुरु साधना, इस बारे में थोड़ा सा समझेंगे। गुरु साधना का अर्थ क्या होता है और गुरु साधना क्या चीज है। जो हम ग्रुप चालू कर रहे हैं, ये एक पे ग्रुप है। यहाँ आकाश के नंबर पे आप इसकी और डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, फीस क्या है, ये डिटेल बाकी हम इसमें, मैंने और हर्षा ने इसमें डिटेल दे ही दी है। तो फीस क्या है वो आप यहाँ पे आमीन आकाश जी के नंबर पे पता कर सकते हैं। अब गुरु साधना ग्रुप जो है वो क्या है और इसमें कैसे हम साधना करेंगे, हर्षा ने तो बताया। मैं उसी बातों को और अच्छे से बता रहा हूं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग इंग्लिश नहीं समझ पाते और बहुत सारे लोग हिंदी नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हर्षा और मैंने दोनों ने मिलकर ये वीडियो बनाया ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएं
और आने वाले टाइम में हम जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर ही साधना कराएंगे। जो लोग इंग्लिश जानते हैं, हिंदी नहीं जानते, बहुत सारे साउथ के लोग हैं जो हिंदी नहीं जानते हैं, तो वो लोग इस तरीके से साधना कर पाएंगे और जुड़ पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे साधकों ने मैसेज करके कहा है कि ना तो हमारी हिंदी ठीक है, ना हम हिंदी को ठीक से समझ पाते हैं, और आउट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे साधक ऐसे हैं। तो अब यहाँ पे मैं बताता हूं आपको गुरु साधना का अर्थ क्या है। गुरु साधना, जब हम अपने गुरु से मिलते हैं और हम गुरु से दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा लेने का मतलब क्या होता है? गुरु जो होता है वो हमें धारण कर लेता है। गुरु जो होता है वो हमें एक्सेप्ट करता है, गुरु स्वीकार कर लेता है। अब गुरु जब हमें स्वीकार कर लेता है, तो गुरु हमें स्वीकार कर लेता है, पहले ही हम शैतान होते हैं, है ना? पहले ही हम शैतान होते हैं, साधना सीरियसली नहीं करते हैं, साधना करते करते बहुत सारे मजाक और बहुत सारी ऐसी मिस्टेक कर रहे होते हैं जिससे कि हमारी साधना भी खराब हो रही होती है और परमात्मा तक पहुंचने का टाइम भी लंबा हो रहा होता है। तो जब हमें गुरु एक्सेप्ट कर लेता था, तो हम थोड़ा और शैतानी करने लगते हैं। अब तो बेपरवाह हो गए, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, गुरु ने हमें एक्सेप्ट कर लिया, अब तो निश्चित परमात्मा मिलेगा ही मिलेगा। जब गुरु ने हमें स्वीकार कर लिया, तो बहुत सारी परेशानियां खत्म हो गई, और बहुत सारे हमारे ऐसे कर्म जो हैं जिनको लेकर हम साधना कर रहे थे और सक्सेस नहीं हो पाए, तो वो सारे कर्म जो है गुरु ने अपने ऊपर ले लिए, तो यहां से और बेटर हो गया। अब बात आती है गुरु साधना की। क्या शिष्य गुरु को साध रहा है? क्या शिष्य ने गुरु को धारण करा? अगर एक शिष्य गुरु को धारण करता है, तो बहुत सारी मिस्टेक जो वो करने जा रहा है वो नहीं होंगी। वो नहीं होंगी। और दूसरी बात जो है, कैसे वो 24 घंटे अपने गुरु के साथ जुड़ा रहे। गुरु अर्थात परमात्मा, कैसे वो अपने गुरु के साथ जुड़ते ही जुड़ते जो है परमात्मा में लीन हो जाए, अलग से साधना करने की जरूरत नहीं। और बहुत सारे साधकों का ये दुर्भाग्य होता है, मैं दुर्भाग्य कहूंगा इसे, कि गुरु के होते हुए वो साधना करते हैं मगर सिद्ध नहीं हो पाते, मतलब परमात्मा को नहीं प्राप्त हो पाते, तो वहां पर वो रह जाते हैं। कैसे जो है शिष्य गुरु को धारण करता है, तो धारण करने के बाद जो है वो 24 घंटे अपने गुरु के साथ बना रहता है। गुरु के साथ बना रहने का मतलब ये नहीं है कि फिजिकल बॉडी के साथ बने रहना। गुरु के साथ बने रहने का मतलब है गुरु की ऊर्जा के साथ वो अपनी आत्मा को जोड़ देता है। तो कैसे वो 24 आवर्स जो है उनके साथ जुड़ा रहे, और कैसे जो है वो मिस्टेक जो कर रहा है वो मिस्टेक नहीं हो। ठीक, तो अब जैसे मैं बता रहा था कि बहुत सारे साधक जो होते हैं वो साधना कर रहे होते हैं, और ये उनका दुर्भाग्य होता है कि उनके गुरु जो है वो शरीर छोड़ देते हैं और वो अभी परमात्मा को उपलब्ध नहीं होते। अब ये साधक जो है बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। अब ये किसी नेक्स्ट गुरु के पास जाते हैं, भाई वो गुरु ने तो शरीर छोड़ दिया, अब आप उन गुरु के शरीर होते हुए परमात्मा को नहीं प्राप्त हो पाए, तो जिन्होंने शरीर छोड़ दिया उनसे कैसे कनेक्ट होकर आप परमात्मा को पहुंच जाओगे? अब तो और सूक्ष्म हो गई यात्रा। कैसे उनके जो है आप उनकी बातों को, जब वो जीवित थे तभी उनकी बातों को नहीं समझ पाए, अब अगर उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो सूक्ष्म बातों को आप कैसे समझोगे? तो फिर वो शिष्य जो होते हैं वो दूसरे गुरु के पास जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे गुरु ने शरीर छोड़ दिया, अब आप हमें मार्ग दिखाओ, अब आप हमें बताओ। तो यहां पर क्या होता है, जब दूसरा गुरु होता है वो एक दूसरी पद्धति से, दूसरे ही मार्ग से, दूसरे मेथड से परमात्मा को प्राप्त करता है, तो वो आपको फिर कहता है कि आप ये मेथड फॉलो करो, तब आपको कुछ होगा, क्योंकि मैं यही मेथड जानता हूं, बाकी मेथड तो नहीं जानता हूं। अब इस प्रॉब्लम को भी हम खत्म कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को हम कैसे खत्म कर सकते हैं कि जब हम गुरु के होते हुए गुरु के सूक्ष्म रूप से जुड़ जाते हैं, जब गुरु के होते हुए हम गुरु के सूक्ष्म रूप से जुड़ जाते हैं, तो उस जुड़ जाने के कारण जो है गुरु का शरीर छूट भी जाता तो भी हम उस एनर्जी से, उस जो है एनर्जी फ्लो से हमेशा कनेक्ट रहते हैं, और गुरु के शरीर को छूटने के बाद भी हम ध्यान साधना में, समाधि में गति करते चले जाते हैं। और यहां पर यह भी है कि अगर हमारे गुरु का शरीर छूट जाता है और हमारा भी छूट जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो उस कंडीशन में ये चीजें ऐसे काम करती हैं कि आप स्पेस में होते हैं और गुरु का जितना भी ज्ञान है वो आपके चारों तरफ मूव करता रहता है,
घूमता रहता है एक सर्कल में, और आप उससे हमेशा कनेक्ट रहते हैं। तो जब आप नेक्स्ट जन्म लेते हैं तो वो सारी चीजें आपको याद रहती हैं, और वो सारी चीजें आपको एक तरीके से फोर्स करती हैं और धक्का देती हैं, और आप साधना में बहुत तेजी से गति करते हो। और उस समय प्रेजेंट में अर्थ पे जो भी गुरु होता है वो आपको कांटेक्ट करता है, ना कि आप कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप इतनी बड़ी ऊर्जा से कनेक्ट हो रखे हो। तो वो गुरु जो है, जो उस समय इनलाइटेड होते हैं, परमात्मा को प्राप्त हो चुके होते हैं, तो वो आपको कांटेक्ट करते हैं। तो गुरु साधना ग्रुप जो है सभी साधनाओं से अलग है, डिफरेंट है, एक्सपीरियंस डिफरेंट है, एक मजेदार और रहस्यमय ग्रुप है। मगर इनको, इस ग्रुप को कौन ज्वाइन कर सकते हैं? जिनके अंदर गुरु के प्रति प्रेम है, जो गुरु के साथ डूबना चाहते हैं, जो गुरु को प्रेमी प्रेमिका जो भी समझना चाहते हैं, परमात्मा जो भक्त टाइप में है, वो लोग इसे कर सकते हैं और वो लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो ये ग्रुप के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, इसकी लास्ट डेट है और इसके साधना का समय है, वो सारा आप अच्छे से समझ लें। 10 फरवरी को चालू होगा और इसकी लास्ट डेट जो है 1 फरवरी है। 1 फरवरी के बाद आप इस ग्रुप में नहीं जुड़ सकते हैं, ठीक है। इस ग्रुप में जो है 10 फरवरी को आप जुड़ेंगे, और टाइमिंग जो होगी रात के 9 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से आप इसमें साधना कर सकते हैं। बाकी बातें हर्षा ने आपको बता दी हैं, और जो रहा वो मैंने आपको बता दिया, आप इसे अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आप इस ग्रुप को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, या आपके मन में आपके प्रति, गुरु के प्रति थोड़ा भी प्रेम है, और आपको लगता है कि उस प्रेम से आप उस परमात्मा को पा सकते हैं, तो ये ग्रुप आपके लिए है। 11 दिन का ये ग्रुप होगा। 11 दिन के अंदर आप इतना कुछ सीख जाएंगे और इतना कुछ समझ जाएंगे कि आप जो है बिना गुरु के भी गुरु को महसूस कर पाएंगे। 11 दिन के बाद भी आप इस ग्रुप को जो है 5 दिन और कंटिन्यू रखेंगे। 11 दिन, 7 दिन तक हम साधना करेंगे, उसके बाद जो है 3 दिन आप साधना करेंगे, उसके बाद फिर एक बार हम साधना करेंगे, फिर आप इस तरीके से आप जो है गुरु के टच में ना होते हुए भी, ना गुरु का टच होगा, ना इंटरनेट, ना मोबाइल फोन, कुछ भी नहीं, और आप उस ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे और उसमें गति कर पाएंगे। तो अगर हम टोटल देखें तो ये 15 दिन का ग्रुप है आपका, ठीक है। तो अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल, मगर 1 फरवरी याद रखें उससे पहले ही, क्योंकि इसमें मेरे को सिर्फ 11 ही साधक चाहिए, ज्यादा साधक नहीं चाहिए, ठीक। आनंदित रहें, सदा खुश रहें, बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।